اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق علی انصاری، سنی حنفی، بریلی، گجرات، سورت سے۔ جیسے کہ ایک میں موضوع لے کر آیا ہوں، ٹاپک لے کر آیا ہوں، اور اس میں دکھانے والا ہوں جیسے کہ آج کے لوگ بہت انکار کرتے ہیں وہابی اسماعیل دہلوی کو، تو آج ہم دکھانے والے ہیں یہ وہابی اور دیوبندی دونوں کا ہی سرگراں یہ اسماعیل دہلوی ہی رہا ہے۔ اور ہمارے انڈیا میں، ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے والا یہ سب سے پہلا شخص کون رہا مسلمانوں میں؟ اسماعیل دہلوی۔ کچھ حوالہ جات میں دوں گا وہابی اور دیوبندی کی ہی کتابوں سے، جس کو وقت آنے پر دیوبندی بھی انکار کر دیتے ہیں اور وہابی بھی انکار کر دیتے ہیں، تو صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ دونوں ہی اپنے پیشوا مانتے ہیں، یہ دونوں ہی اسماعیل دہلوی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور کتاب تقویۃ الایمان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ بہت ساری کتابوں میں ان کی تعریف موجود ہے، چاہے دیوبندیوں کی کتابیں دیکھ لیجیے، چاہے وہابی کی کتاب دیکھ لیجیے۔ میں کچھ حوالے دوں گا، زیادہ لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے میں حوالہ کم ہی لگاؤں گا۔ انشاءاللہ آگے اگر پارٹ 2 بنانے کی ہوئی بات تو میں ضرور آگے اور بھی حوالہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھ لیجیے۔ اس ویڈیو میں ایک وہابی ہے اور اس میں تعریف کر رہا ہے، اس کی اسماعیل دہلوی کی تعریف کر رہا ہے۔ اگر اسی وہابی کو ہم پکڑیں اور اس کتاب تقویۃ الایمان کتاب اس کے سامنے پیش کریں اور اس سے پوچھے کہ اس کتاب کا جواب دو، فوراً ہی انکار کر دے گا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اور یہ اندر ہی اندر مانتے رہتے ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ قرآن و حدیث، اور یہ اندھے ہو کر اپنے مولویوں کی بات کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں اندھے بن کر۔ بہرحال پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجیے، پھر میں آگے تبصرہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام سننے والوں کو، اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب کی زندگی اور شہدائے بالاکوٹ میں جتنے حضرات شہید ہوئے ہیں ان کی زندگیوں کے متعلق ہم نے ایک فیس بک پہ ایک پیج بنایا ہے، مشن شاہ اسماعیل شہید بالاکوٹ کے نام سے۔ تمام حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ شہدائے بالاکوٹ کے مشن سے زیادہ عوام کو آگاہی ہو اور صحیح معنوں پر ان کے جو ہے مشن تک لوگوں کی رسائی ہو۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے، تو یہ اسماعیل دہلوی کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں تعریف کر رہا ہے، یہ وہابی مولوی اسماعیل دہلوی کی تعریف ایسے ہی نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ اگر ہم کسی وہابی سے بات کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ فوراً بھاگ جائے گا کہ بھائی ہم صرف قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں۔ حالانکہ اب میں حوالے دینے لگا ہوں، پہلے آپ حوالہ سن لیجئے کہ وہابی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ پھر میں تقویۃ الایمان کتاب کی حقیقت میں سامنے دکھاؤں گا، وہابی اور دیوبندی دونوں کی ہی کتاب سے، ٹھیک ہے؟ میں وہابی دیوبندی کی دونوں کی کتاب سے دکھاؤں گا کتاب تقویۃ الایمان کی حقیقت۔ بہرحال پہلے یہ حوالہ مجھ سے لے لیجئے، میں حوالہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلا حوالہ میرے پاس کتاب ہے البریلویت، تاریخ و عقائد، لکھنے والے کا نام ہے قذاب اعظم امام العصر علامہ احسان الہی ظہیر، ٹھیک ہے؟ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم کہلانے جانے والے یہ قذاب اعظم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنی کتاب البریلویت میں کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس کتاب ہے البریلویت، صفحہ نمبر 197 ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا کہتے ہیں؟ اسماعیل دہلوی کی تعریف کرتے ہوئے اسماعیل دہلوی کے تعلق سے لکھتے ہیں، اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے وہابی تحریک کے سرخیل شاہ اسماعیل شہید کو نشانہ بنایا۔ کس نے بنایا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ بات کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ کیوں بنایا نشانہ؟ کیوں شرک و بدعت کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ کرنے والے سب سے پہلے شخص تھے۔ کیا شخص تھے؟ ابھی میں یہ بات آ گیا ہے کہ کون سے شرک و بدعت کو روکنے کے لیے وہ کھلم کھلا اعلان کیے، تبھی میں آگے دکھاؤں گا، کیونکہ آپ نے یہ حوالہ پڑھ لیا۔ میں دوبارہ اس عبارت کو دوبارہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے وہابی تحریک کے سرخیل شاہ اسماعیل شہید کو نشانہ بنایا، کیونکہ وہ شرک بدعت کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ کرنے والے وہ سب سے پہلے شخص تھے، ٹھیک ہے؟ ایک حوالہ یہ ہو گیا البریلویت کا۔ دوسرا میرے پاس یہ حوالہ ہے فتاوی ثنائیہ، جلد اول ہے میرے پاس۔ لکھنے والے کون ہے؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا شاہ ثناء اللہ امرتسری صاحب، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 384 ہے، جلد اول۔ سوال کیا گیا، اکثر حنفی لوگ کہتے ہیں کہ مولانا نذیر حسین دہلوی شاہ اسماعیل شہید
اور नवाब सिद्दीक हसन खान ये हनफी लोग हैं। तो सवाल किया गया कि क्या हक है। जवाब, ये तीनों साहब पक्के अहले हदीस थे। क्या थे? ये तीनों शख्स पक्के अहले हदीस थे। मौलाना नजीर हुसैन दहलवी किताबुल लिकाउल हक और मौलाना इस्माइल दहलवी कौन? तक़वतुल ईमान। किताब का नाम सुन लीजिए। कौन सा किताब का नाम लिया जा रहा है? कि मुसन्निफ का नाम लिया जा रहा है। किताब का नाम किताब तक़वतुल ईमान मौलाना शाह इस्माइल दहलवी। ठीक है, अब इसकी तारीफ हो गई। मैंने वहाबी किताब की 2 किताबों से मैंने साबित किया और किताब से मैंने साबित किया कि यहाँ पे तक़वतुल ईमान किताब की तारीफ की जा रही है और वहाबी तहरीक के सबसे बड़े सर्कल भी माना जा रहा है। ठीक है, अब चलिए, अब मैं देवबंदी की एक किताब से मैं दिखा देता हूँ कि देवबंदी भी तक़वतुल ईमान की किताब की तारीफ कर रहे हैं और अपने शाह इस्माइल की भी कितनी तारीफ करते हैं वो भी मैं अभी आगे दिखाऊंगा। ये मेरे पास किताब है फतावे रशीदिया, सफ़ा नंबर इसका 80 है। सवाल तक़वतुल ईमान के ताल्लुक से किया गया था, जवाब लिखा हुआ है, फतवा है ये। और किताब तक़वतुल ईमान किताब निहायत ही उम्दा किताब है, शिर्क व बिदात में लाजवाब है। इस्तिदलाल इसके बिल्कुल किताबों अहादीस से है। उनका रखना, पढ़ना और अमल करना ऐन इस्लाम है और मौजिब अजर का है। इसके रखने को जो कुफ्र कहता है वो काफिर है, या फासिक है या बिदाती है। तो यानी किताब कितनी अजीम है कि जो इनको रखने को कुफ्र कहता है वो काफिर है। अस्तगफिरुल्लाह। देख लीजिए, आप इनके फतावे देख लीजिए, या फासिक है या बिदाती है, या फासिक है या बिदाती है। 3 तरह के फतवे यहाँ पे मौजूद है। जो रखने को कुफ्र कहता है, हम तो कहते हैं कि ये रखना कुफ्र है, तो यानी हम इसे किताब के न रखने की वजह से या मना करने की वजह से काफिर हो गए। अस्तगफिरुल्लाह नऊजुबिल्लाह। ठीक है, अब किताब की असलियत भी मैं दिखा देता हूँ कि किताब की असलियत क्या है और मुसन्निफ क्या कहता है। ये किताब की ये दोनों तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका अपने मुसन्निफ का हाल देख लीजिए, वो मुसन्निफ क्या कहता है, फिर मैं आगे और भी हवाला में दूंगा। उस किताब की हकीकत सुन लीजिए कि उस किताब का असल मुसन्निफ यानी इस्माइल दहलवी खुद क्या कहता है। पहले एक हवाला मैं और दे देता हूँ, इसको नोट करिए, उसके बाद मैं उस मुसन्निफ का अपना हाल बताता हूँ कि वो अपनी किताब को क्या मानता है। ये मेरे पास किताब है आज़ाद की कहानी खुद आज़ाद की ज़ुबानी। किसकी किताब है? आज़ाद की कहानी खुद आज़ाद की ज़ुबानी। ये मौलाना अब्दुल आज़ाद की किताब है। ठीक है, उनके सवाने हयात से किताब लिखी गई है। तो इसमें मेरे पास सफ़ा नंबर 366 है। इबारत बहुत ही गौर से सुनने वाली है। लिखा है कि उन किताबों में से मौलाना इस्माइल शहीद को किताबी तौहीद मिली और उनके अंदर ही अंदर दीन जदीद के फितने, क्या लिखा है? दीन जदीद के फितने की मुफीद तलब समझकर उनको महफूज कर लिया। यानी किताब तौहीद जो है इसमें क्या है? दीन जदीद का फितना उसमें मौजूद है। बिल्कुल इबारत में एक बार और मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उन किताबों में से मौलाना इस्माइल शहीद को किताब तौहीद मिली और उनके अंदर ही अंदर दीन जदीद से उस फितने की मुफीद तलब को समझकर उसको महफूज कर लिया। किसको समझकर? दीन जदीद को मुफीद यानी अच्छा फितना समझकर को उसको महफूज कर लिया। अब ये फितना पदार्थ फैलाने वाले उनको समझ अपने पास रख लिया, उसके बाद अपने पास रखने के बाद किया क्या? चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। ये मेरे पास किताब है अरवाह सलासा यानी हिकायत औलिया, लिखने वाले इनके मरीजुल उम्मत यानी अशरफ अली थानवी। ठीक है, इसमें उनका अपना कुछ एतराफ मौजूद है। यहाँ पर हिकायत नंबर 59 यानी 59 नंबर लिखा है। खान साहब ने फरमाया, मौलवी इस्माइल साहब ने किताब तक़वतुल ईमान अरबी में लिखी, चुनांचे उसका एक नुस्खा मेरे पास और दूसरा नुस्खा मौलाना गंगोई और तीसरा नुस्खा मौलाना नसरुल्लाह खान उर्दू के कुतुब खाना में मौजूद था। इसके बाद मौलाना ने उसको उर्दू में लिखा और लिखने के बाद अपने खास लोगों को जमा किया, जिसमें सैयद साहब, मौलवी अब्दुल हक साहब और शाह इसहाक साहब, मौलाना याकूब साहब, मौलवी फरीदुद्दीन साहब मुरादाबादी, मोमिन खान साहब, अब्दुल्ला खान अलवी साहब, उस्ताद मोहतरम इमामुल हक तबाई और मौलाना ममलूक अली साहब थे। मैं पूरी बात पढ़ के सुना देता हूँ। तो उनके सामने तक़वतुल ईमान पेश की गई। फरमाया कि मैंने एक किताब लिख दी है और मैं जानता हूँ कि इस किताब में बाज़ जगह तेज अल्फाज आ गए हैं। क्या है? बाज़ जगह तेज अल्फाज आ गए हैं, बल्कि आ गए हैं और बाज़ जगह
तशद्दुद हो गया है, मतलब उन उम्र जो शिरक खफी था उनको शिरक जली लिख दिया गया। तो शिरक खफी और शिरक जली के ताल्लुक से मैं बता देता हूँ। शिरक खफी किसे कहते हैं, शिरक जली किसे कहते हैं। शिरक खफी उसे कहते हैं, उस अमल को कहते हैं जो रियाकारी होता है, उससे इस्लाम से उससे इंसान मुसलमान दायर इस्लाम से खारिज नहीं होता है, उससे सिर्फ गुनाहगार होता है। तफसीर इब्ने कसीर आप पढ़ लीजिए और सूरह कहफ की आखिरी आयत कुल इन्नमा अना बशरकुम मिस्लुकुम, इस आयत की तफसीर इब्ने कसीर पढ़ लीजिए। उसमें इब्ने कसीर ने सारी चीजें वहाँ पर लिखी है कि शिरके खफी में क्या क्या आता है, यानी दिखावे का अमल, चाहे नमाज हो गए, चाहे रोजा हो गए, चाहे हज ज़कात, कोई भी अमल हो गया दिखावे का, उसको कहते हैं शिरके खफी, यानी दिखावे का अमल, रियाकारी। इससे इंसान से गुनाहगार होता है, उसका अमल काबिल कबूल नहीं होता। और शिरके खफी उसे कहते हैं, शिरके जली उसे कहते हैं जिससे इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। ठीक है, तो शिरके जली उसे कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बाद जगह तशद्दुद हो गया, मतलब उन उमूर जो शिरके खफी तो उनको शिरके जली लिख दिया गया है, शिरके जली लिख दिया है। और शिरके जली लिख दिया, मैं आखिरी बात पढ़ के सुना रहा हूँ। लिखा हुआ है कि इससे शोहरत होगी मगर तवक्को है कि लोग लड़ भिड़ कर ठीक हो जाएंगे। आप हजरत की राय हो तो इसे छाप दे, वरना इशाअत हो तो चाक कर दे, वरना पाड़ के फेंक दें। ठीक है, तो लोगों ने फिर आपस में बात की और फरमाया कि इसे इशाअत करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। तो इस पर एक शख्स ने कहा कि इशाअत तो जरूर होनी चाहिए मगर फला फला मकाम पर तरमीम होनी चाहिए। क्या कहा, फला फला मुकाम पर तरमीम होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर आगे कहा कि नहीं, तरमीम की जरूरत नहीं, इसी तरह छाप देनी चाहिए। तो इसी तरह इशाअत हो गई, इसी तरह छाप दी गई। सफा नंबर 67 और 68। तो यहाँ पर जो शिरक खफी को शिरक जली लिख दिया गया और उसको फितना फसाद फैलाया गया इस किताब से। क्योंकि मैंने पहले ही अल-बरीर का हवाला दे चुका हूँ कि इस वहाबी सिलसिले का सबसे पहले सरखेल इस्माइल देहलवी और देवबंदियों के भी सबसे पहले सरखेल इस्माइल देहलवी, ये इसने ही पूरे हिंदुस्तान में आग लगाई किताब तक़वियतुल ईमान किताब से, तक़वियतुल ईमान किताब से आग लगाई। मैं इनके घर का हवाले देता हूँ, हमारे घर में तो बहुत सारे हवाले मौजूद है। हमारे घर की किताब को ये मानने से रहे, मानेंगे नहीं। इनकी अपनी किताबें से मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज से दिखा हुआ, ऐसा नहीं कि ढके छुपे अल्फाज में लिखा हुआ है। और जो दोनों ही मानते वो भी मैंने हवाले दिखा दिए। चलिए, ये की बात तो हो गई कंप्लीट। आगे मेरे पास हवाले बहुत है, वाइस लंबी हो जा रही है। और दूसरी बात ये है कि ये देवबंदी और वहाबी हमेशा ही औलिया अल्लाह के मज़ारात पे एतराज करते हैं, कहते हैं कि इन मज़ारात को तोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह। हालांकि जब हम बात करते हैं तो इसको बात नहीं करते हैं। इनको भुगते किससे, सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार से, चाहे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला की मज़ार, चाहे निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला और भी बहुत सारे औलिया अल्लाह हिंदुस्तान में मशहूर है, वो है। ठीक है, उन सब का नाम लेकर ये तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन चूंकि आपने वीडियो देख ली है, पूरी आपने वीडियो देखी है, जहाँ पे मार्बल की बनी हुई पक्की मज़ार है। किसकी मज़ार है, इस्माइल शहीद, जो इनके कहे जाते हैं कि इस्माइल, हालांकि शहीद वेद नहीं हुए थे, लोगों ने, पठानों ने उसको बम तोड़ा दिया था, उसकी लाश भी नहीं मिली थी, ना जाने अंदर क्या गाड़ा हुआ है। बहरहाल ये ताज़िया औलिया में मौजूद है। बहरहाल उससे हमको नहीं लेना देना, कुत्ता था बस, सुअर था, बंदर क्या था वो मुझे नहीं मालूम। बहरहाल मुझे कहना ये है कि ये एतराज करते हैं औलिया अल्लाह की मज़ार पे ये पक्की बनी हुई है। तो ये बताएं ये किस चीज़ की बनी हुई है, ये किस चीज़ की बनी हुई है, वो मुझे बताएं। और उसके अलावा भी अगर आजू बाजू अगल बगल देखेंगे और भी पक्की मज़ारें बनी हुई है, वो पत्थर की बनी हुई है। तो उसके ताल्लुक से इनके ज़बानों में क्या लकवे मार जाते हैं। चाहे वहाबी के आलिम हो गए, वहाबी अहले हदीस को आलिम हो गए, आज तक हमने किसी एक के भी बयान नहीं सुने। तमाम औलिया अल्लाह के ताल्लुक से तो हमने इसके बयान बहुत सुने, वहाबियों के आलिमों के, उनके मुफ्तियों के बहुत सारे बयान सुने। लेकिन इस्माइल शहीद इनके जो कहलाए जाते हैं, इनकी मज़ार के ताल्लुक से एक भी बयान नहीं सुने मैंने। और चाहे देवबंदियों के भी बहुत सारे उलमा से मैंने वीडियो देखे मज़ार के ताल्लुक से, जैसे कि तारिक मसूद हो गया और भी दीगर इनके उलमा है जो कहते हैं कि मज़ार को तोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये इनके इस्माइल शहीद के ताल्लुक से इनकी ज़बान पे लफा क्यों मार जाता है, मतलब कुछ तो दाल में काला है। ठीक है, तो ये तो अपने अपने करते रहते हैं। नफ्स परस्त लोग, अकाबिर परस्त लोग हैं, इनको ना ही कुरान हदीस से लेना देना है, ना इनको दीन इस्लाम से लेना देना। ये अकाबिर परस्त करते करते मर जाएंगे और इसी तरीके से आपको गुमराह कर ले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि इनके बहकावे में ना आए, दीन का इल्म सीखें
اور یہ کچھ بھی عمل ایسا کرتے ہیں ہمارے عمل یا ہمارے عقیدے پر اعتراض کرتے ہیں، تو یہ سارے عمل اور عقیدے ان کے اپنے خود کے گڑے ہوئے ہیں، ہمارے کوئی عمل اور عقیدے گڑے ہوئے نہیں ہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں اس پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ اگر کسی وہابی دیوبندی کے پاس جواب ہو تو میرا جواب ضرور دیں، ورنہ مجھے کال کریں تو مجھ سے مناظرہ کریں اسی ٹاپک پر۔ جو میں نے آپ کا ٹاپک چھڑا، جو میں نے حوالے دیے، میرے حوالے پر کسی کو اعتراض ہو تو آئے مجھ سے بات کریں۔ میرے پاس بہت سارے حوالے، میں زیادہ لمبی وائس ہو رہی ہے اس لیے میں حوالے کم ہی رکھ رہا ہوں۔ بہرحال اب ہمارے سننے سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے، ٹھیک ہے؟ اور ویڈیو اچھا لگا تو شیئر ضرور کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔